Hello students, welcome to this lecture number 5 of trigonometric ratios and identities for JEE. You are watching an important series of these 15 lectures which contains 150 important questions, and all these questions are selected from these favorite books of mathematics, Cengage Mathematics and Objective Mathematics by R.D. Sharma. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So let us start trigonometric ratios and identities for JEE. So this is the question number 41 of lecture number 5 of trigonometric ratios and identities for JEE. So see this question, we have to find the value of cos of 56 plus cos of 58 minus cos of 66 minus 4 cos of 28 into cos of 29 into sin of 33. So see students, which formulae are useful to solve this or to find the value of this expression. So see students, first I will write for फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज़ लिखता हूँ, या फिर मैं इस टर्म को ऑब्जर्व कीजिए. दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन 4 इंटू कॉस ऑफ 28 इंटू कॉस ऑफ 29 इंटू साइन ऑफ 33. सो आई विल सॉल्व दिस. 4 इंटू कॉस ऑफ 28 इंटू कॉस ऑफ 29 इंटू साइन ऑफ 33. आई विल सॉल्व दिस लास्ट टर्म first. So using defactorization formula मैं इस यूज़ करूँगा. Factorization and defactorization. Factorization are used to express sum और difference into product, और defactorization से हम product को sum और difference में convert कर सकते हैं. So I will write 4 as 2 and last term is sin of 33, and in bracket I will write 2 cos of 28 इंटू cos of 29. सो आपको समझ में आया होगा ये स्टेप. 4 sin of 33 को मैंने 2 इंटू 2 sin of 33 लिखा है, एंड नाउ दिस ब्रैकेट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 cos a इंटू cos b. सो 2 cos a इंटू cos b डी फैक्टराइजेशन का थर्ड फार्मूला है. सो 2 cos a इंटू cos b इज cos of a plus b plus cos of a minus b. Cos of a plus b, so this will be equal to 57 plus cos of a minus b, तो 28 minus 29 minus 1 degree. Cos of minus theta is cos theta, so it is cos of 1 degree. Now I will multiply to this bracket by 2 sin of 33. So multiplying by this, it will be 2 sin of 33 into cos of 57 plus 2 sin of 33 into cos of 1 degree. फिर से मुझे डिफैक्टराइजेशन का ही फॉर्म मिला है. 2 sin a into cos b, 2 sin a into cos b. सो व्हाट इज 2 sin a into cos b? डिफैक्टराइजेशन का फर्स्ट फार्मूला है 2 sin a into cos b, sin of a plus b plus sin of a minus b. sin of a plus b, sin of a plus b करते हैं. So it is 33 plus 57, so it will be 90 plus sin of a minus b, so 33 minus 57, so it will be 24 sin of minus 24, so it will be minus sin of 24. sin of a minus b, sin of minus 24 होगा, sin of minus 24 is minus sin of 24. So this is sin of a plus b plus sin of a minus b. यहाँ पे भी 2 sin a into cos b, so sin of a plus b, so 33 plus 1, this will be 34 plus sin of a minus b, 33 minus 1, that will be equal to 32 degree. Okay, so this is value of 4 cos 28 into cos of 29 into sin of 33 is this. अब मुझे इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ पहले फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज़. cos of 56 plus cos of 58 minus cos of 66.
मुझे 4 cos ऑफ 28 इंटू कॉस ऑफ 29 इंटू साइन ऑफ 33 की वैल्यू ये मिली है। यहाँ पे माइनस साइन है, सो इस टर्म को मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करने का है। सो साइन 90 इज़ 1, सो इट इज़ -1. दिस विल बी प्लस साइन ऑफ 24, दिस विल बी माइनस साइन ऑफ 34 and last will be minus sine of 32. Now see here are some pairs of complementary angles. कुछ pairs इसमें हैं, complementary angles है. So here this cos of 56, this cos of 56 can be written as sine of, so it is sine of 34 plus cos of 58, cos of 58 sin, cos of theta is sin of 90 minus theta, complementary angles. 56 plus 34 90 डिग्री होगा, 58 plus कितना 32, so it will be also 90 degree. So cos of theta is sin of 90 minus theta minus cos of 66, cos of 66 will be equal to sin of, so this will be 66 यानी 4 और 24 माइनस साइन ऑफ 24 -1 प्लस साइन ऑफ 24 माइनस साइन ऑफ 34 माइनस साइन ऑफ 32. सो कॉस ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. पहले 3 टर्म के लिए मैंने यूज़ किया है. नाउ हियर दिस प्लस साइन ऑफ 34 माइनस साइन ऑफ 34 विल गेट कैंसल. Plus sine of 32 minus sine of 32 will get cancelled. Minus sine of 24 plus sine of 24 will get cancelled, and the remaining term is only -1. So therefore the value of this expression cos of 56 plus cos of 58 minus cos of 66 minus 4 cos 28 into cos 29 into sin 33 is -1. So -1 is the answer to this first question number 41 of this lecture number 5. So see the option -1 कौन से ऑप्शन में है? Yes, this -1 is in the third option. Now see this question number 42. Here I have to find the value of this expression. See the question. The value of this expression cos of 35 degree plus cos of 125 degree plus 2 sin of 185 into sin of 130 plus sin of 140, and the given options are positive and greater than 1/2, negative and less than 1/2, 1/2 या 0. तो हमें भी इससे फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फार्मूलेज यूज़ करके इसे सॉल्व करने का है. लास्ट क्वेश्चन की जैसा सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे काफ़ी थोड़े बड़े बड़े एंगल्स दिख रहे हैं. 125 हो या 185 हो, 130 हो, 140 हो, इस एंगल्स को हम छोटा बनाएंगे यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज. अलाइड एंगल फार्मूले इसको यूज़ करेंगे. सो कॉस ऑफ 35 छोटा एंगल है, इसे मैं एज इट इज़ रख देता हूँ. कॉस ऑफ 125, सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कॉस के रेशो अपोजिट साइन के होते हैं. कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. सो कॉस ऑफ 125, तो 125 प्लस 55, सो आई कैन राइट इट एज माइनस कॉस ऑफ 55. कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. 125 प्लस 55, जैसे कि 180 माइनस थीटा और प्लस थीटा 180 होता है, तो दिस इज माइनस कॉस थीटा. सो 125 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 55. So 180 minus 55, cos of 180 minus 55 will be minus cos of 55. Okay. So प्लस अब ये साइन ऑफ 185 है यहाँ पे. सो आई विल राइट इट एज साइन ऑफ 180 प्लस 5 डिग्री. साइन ऑफ 180 प्लस 5, दिस विल in the third quadrant. In third quadrant sine is negative, so it is minus sine of 5 degree. So this my plus 2 sine of 185 is minus 2 sine of 5 degree, and sine of 180 minus theta is sin theta, so इसका supplementary angle 150 degree होगा. sine of 180 minus theta, sine of
180 minus theta is sin theta. Okay, so 130 plus 50 180, therefore this is the relation, and 140 plus 40 is 180. So this is sin of 180 minus theta is sin theta. So students, अब इस एंगल्स को काफ़ी छोटा कर लिया है हमने. अब इसे फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन फार्मूलेज का यूज़ करेंगे. कॉस ऑफ 35 माइनस कॉस ऑफ 55, कॉस सी माइनस कॉस डी, फोर्थ फार्मूला है फैक्टराइजेशन का. कॉस सी माइनस कॉस डी यूज़ करेंगे. सो कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2. सो 55 प्लस 5 60 प्लस 30 कितना होगा 90, 90 बाई 2 इट विल बी इक्वल टू 45. So into 2 sin of c plus d by 2 into sin of d minus c by 2. तो 55 minus 35 कितना होगा 20, 20 by 2, 20 by 2 कितना होगा 10 डिग्री. ओके, सो नाउ इट इज़ माइनस 2 sin 5 डिग्री. अब यहाँ पे यूज़ करेंगे sin c प्लस sin d. यहाँ पे यूज़ किया था हमने cos c माइनस cos d. So sin c plus sin d is the first formula of factorization. 2 sin of c plus d by 2, 2 sin of c plus d by 2, 90 by 2, 45 degree, into sin of, into cos of c minus d by 2 degree. Sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. So c minus d will be 10 by 2. This will be equal to what? 5 degree. Now see, this is 2 sin of 45 into sin of 10 minus 2 sin of 45, 2 sin of 45. अब यहाँ पे देखिए 2 sin 5, ये देखिए ये 2 sin 5 into cos 5. 2 sin of 45 मैंने पहले लिख लिया है. Now the remaining terms are here 2 sin 5 into cos 5, 2 sin theta into cos theta, sin of 2 theta. So sin of 2 theta 2 times theta यानी 2 times 5 degree होगा, and this 2 times 5 degree is what? 10 degree. Now observe here, these both terms are same. 2 sin 45 into sin 10, this is also 2 sin 45 into sin 10. So both terms are same. First is plus, second is minus, so answer will be 0. So 0 is the answer to this question number 42. See the option. Yes, this 0 is in the last option. Option 4 is the correct. See this question number 43. Again here I have to find the value of this expression cos 12 plus cos of 84 plus cos of 156 plus cos of 132. अगेन आई विल रिड्यूस दिस एंगल्स, काफ़ी बड़े बड़े एंगल से छोटे करेंगे. cos of 12 इज एज इट इज़. फर्स्ट cos 12 प्लस cos of 84 एज इट इज़. cos of 180 minus theta is minus cos theta, so it is minus cos of 180 minus 156. so 180 minus 156 कितना होगा 60 का 4 और ये 156 यानी 4 और ये 24 होगा. इट इज़ 24, राइट. एंड cos of minus cos of 132 होगा 48 डिग्री. ओके, cos of 132 plus 48 that is 180. ओके, सो दिस ये एंगल्स को हमने छोटा कर लिया है. अब मैं इसे फैक्टराइजेशन यूज़ करूँगा. cos c plus cos d, cos c plus cos d ऐसा यूज़ करता हूँ इसे. cos c plus cos d, 2 cos of c plus d by 2. so this will be 96 by 2 कितना होगा 48. ओके, 2 cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 into cos of c minus d by 2. so 84 minus 12 कितना होगा 72 by 2 कितना होगा 36. ओके, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ. ये माइनस कॉमन लेके फिर से cos c प्लस cos d ही यूज़ करने का है. सो टेकिंग माइनस कॉमन, दिस विल बी प्लस cos c प्लस cos d, 2 cos of c प्लस d by 2. सो दिस विल बी
72/2 36 into cos of c minus d by 2. So 48 minus 24/2, this will be equal to what? 12 degree. Yes, I am correct or not? 24 cos of 12 degree, right? So this is the correct. Now अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं. 2 cos of 36, 2 cos of 36 can be taken common from these two terms. 2 cos of 36 is common, and I have this cos of 48 minus cos of 12 degree. Again this 2 cos of 36 as it is. cos c minus cos d, लास्ट फार्मूला ऑफ फैक्टराइजेशन. cos c माइनस cos d यूज़ करते हैं. 2 sin of c प्लस d बाई 2. 48 प्लस 12 इज 60. 60/2 कितना होगा? 30, राइट. 2 sin of c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2. सो इट विल बी माइनस होगा यहाँ पे एंगल d माइनस सी बाई 2 करने का है. 48 माइनस 12, सो दैट विल बी 36/2, 18 डिग्री होगा, राइट. सो मैं इस 2 sin 30 को कैंसिल ही कर देता हूँ. sin 30 इज़ 1/2. साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, सो इट इज़ -2 sin of 18 degree into cos of 36 degree. So -2 as it is. Sin of 18 is what? √5. So √5 minus 1/4 and into cos of 36. तो cos of 36 क्या होता है? √5 plus 1/4. Okay. So these values are very important. Sin of 18, cos of 36. प्लीज़ इस वैल्यूज़ को आप याद रखिए. These values are also very very important. Sin 18, cos 36, √5 minus 1/4 and √5 plus 1/4. So this is 16. तो ये बनेगा -8 होगा नीचे. a minus b, a plus b, a square minus b square, 5 minus 1. So it is -4/8. -4/8 तो आंसर कितना होगा? -1/2. सो -1/2 देखिए ऑप्शन में 43 का आंसर है. -1/2 and this -1/2 is in the third option. Now see this question number 44. Here I have given the angles alpha, beta, gamma. Alpha plus beta minus gamma equal to pi. This is the given condition here, and I have to find the value of sin square alpha plus sin square beta minus sin square of gamma. So see students, here some important formulas ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने पड़ेंगे. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी. साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. सो साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इस फॉर्म में है, तो इसे मैं लिखता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी यानी बीटा प्लस गामा इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी यानी बीटा माइनस गामा. सो दिस इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी और फार्मूला हमने यूज़ किया है. अब देखें इससे हम किससे कैसे चेंज कर सकते हैं. साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस गामा एज इट इज़. अब बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा को देखिए, बीटा माइनस गामा को क्या लिख सकता हूँ मैं? पाई माइनस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस गामा. दिस एंगल कैन बी रिटन एज पाई माइनस अल्फ़ा. सो दिस इज साइन ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा. सो दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस गामा. साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, so it is sin alpha. So now we can take sin alpha common from both these terms. Taking sin of alpha common, here is one sin alpha plus sin of beta plus gamma. Okay, this is sin of beta plus gamma. बीटा प्लस गामा को नहीं चेंज कर सकता, लेकिन फिर से मैं अल्फ़ा को चेंज कर सकता हूँ. सो साइन अल्फ़ा एज इट इज़. सो साइन ऑफ
अब देखिए अल्फ़ा कैन बी रिटन एज पाई माइनस बीटा माइनस गैमा। सो दिस अल्फ़ा को मैंने चेंज किया है पाई माइनस बीटा माइनस गैमा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस गैमा एज इट इज। ओके, सो नाउ इट इज साइन अल्फ़ा, दिस इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। सो इट इज साइन ऑफ बीटा माइनस गैमा plus sine of beta plus gamma. Okay, now see here this sine alpha as it is, now sin c plus sin d, factorization का फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे sin c plus sin d. so sin c plus sin d is 2 sin of c plus d by 2 माइनस गैमा प्लस गैमा कैंसल होगा, 2 बीटा बाई 2 इज बीटा इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, बीटा बीटा कैंसिल होगा, माइनस गैमा माइनस 2 गैमा बाई 2 माइनस गैमा, कॉस ऑफ माइनस गैमा इज कॉस गैमा। ओके, तो सिंपल फॉर्मूले इसके हैं। तो देखिए प्रोडक्ट एक्चुअली हमें क्या मिला है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा और लास्ट में क्या है कॉस गैमा। तो चेक कीजिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में ये है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इंटू cos gamma. So yes, this is the correct answer to this question number 44 and this is in the first option. Now see this question number 45. So here students, I have given that the value of this expression depends on what? A, B, both A and B और neither A nor B, डिपेंड और इंडिपेंडेंट किस पे है A और B पे, ये हमें फाइंड आउट करने का है। एंड द गिवन एक्सप्रेशन इज लाइक दिस cos स्क्वायर ऑफ A माइनस बी प्लस cos स्क्वायर B माइनस 2 cos ऑफ A माइनस बी इंटू cos A इंटू cos B. सो हियर फर्स्ट आई विल राइट दिस फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज cos स्क्वायर ऑफ A माइनस बी प्लस cos स्क्वायर B एज इट इज। नाउ this can be written as minus cos of A minus B 2 cos A इंटू cos B, ऐसा फार्मूला यूज़ करता हूँ। इंटू मैं लिख देता हूँ 2 cos A इंटू cos B, कुछ भी नहीं किया है, 2 cos A इंटू cos B मैंने एक जगह पे लिखा है, cos ऑफ A माइनस बी इसको मैं पहले लिख लिया है। ओके, सो फार्मूला यूज़ कर सके इजीली, इसीलिए एडजस्टमेंट है। फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज़ माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी एज इट इज, 2 cos ए इंटू कॉस बी, डी फैक्टराइजेशन थर्ड फार्मूला, 2 cos ए इंटू कॉस बी क्या होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, 2 cos ए इंटू कॉस बी। सो यहाँ पे ए ब्रैकेट लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, नाउ सी हेयर cos of A plus B plus cos of A minus B. So now I will write again this as it is cos square of A minus B plus cos square of B minus cos of A minus B into cos of A plus B minus cos of A minus B into cos of A minus B minus cos square of A minus B. तो ये फर्स्ट टर्म है cos स्क्वायर ऑफ A माइनस बी, लास्ट टर्म में माइनस cos स्क्वायर ऑफ A प्लस बी, बोथ दिस टर्म्स विल गेट कैंसल। अब देखिए दिस रिमेनिंग आर cos स्क्वायर बी माइनस cos ऑफ A माइनस बी इंटू cos ऑफ A प्लस बी। तो इससे हम यूज़ करेंगे cos स्क्वायर बी एज इट इज़ माइनस cos ऑफ A प्लस बी इंटू cos ऑफ A माइनस बी, cos ऑफ A प्लस बी इंटू cos ऑफ A माइनस बी, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। लास्ट मेरा लेक्चर देखिए, इसमें मैंने cos ऑफ A प्लस बी इंटू cos ऑफ A माइनस बी, साइन ऑफ A प्लस बी इंटू साइन ऑफ A माइनस बी के सारे फॉर्मूले दिए हैं। साइन ऑफ A प्लस बी इंटू साइन ऑफ A माइनस बी, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A, cos ऑफ A प्लस बी इंटू cos ऑफ A माइनस बी, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। सो दिस इज़ द रिजल्ट हियर। अब ये बनेगा cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B, ये फार्मूला है यूज़ किया हुआ इम्पोर्टेंट। cos स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B 1 होगा, इट इज़ 1 माइनस cos स्क्वायर A। तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद मुझे
इसकी वैल्यू मिली है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ई इज व्हाट साइन स्क्वायर ए. सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट साइन स्क्वायर ए. सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन दिस एंगल ए, डिपेंड्स ऑन ए पे, एंगल ए पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड होगी. सो इसका आंसर होगा डिपेंड्स ऑन ए, डिपेंड्स ऑन एंगल ए. सो सी द ऑप्शन डिपेंड्स ऑन एंगल ए. Yes, this answer is correct and this is in the third option. Now see this question number 46. काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व होगा. तो इसमें दिया है हमें दो एंगल्स अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा पूछा है. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री. काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, कम टाइम में सॉल्व होगा. साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, बीटा क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा. सो इट इज साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा. सो इट इज़ हाफ ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फ़ा. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है. सबको पता है साइन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1. सो हाफ ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फ़ा विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/2, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2. So the maximum value of half of sin of 2 alpha is 1/2 and this half of sin of 2 alpha is nothing but sin alpha into sin beta. So the maximum value of sin alpha into sin beta is what 1/2. So 1/2 इसका करेक्ट आंसर है 46. देखिए 1/2 is yes, this is in the first option. And here is question number 47. काफ़ी easy question है. In this question I have given this condition cos alpha plus cos beta is 0 as well as sin alpha plus sin beta is also 0. Both cos alpha plus cos beta and sin alpha plus sin beta are equal to 0 and I have to find the value of cos of 2 alpha plus cos of 2 beta. So how I can get the value of cos of 2 alpha plus cos of 2 beta in terms of alpha plus beta sin cos. इस तरह के मेरे पास ऑप्शन है. So here cos alpha plus cos beta and sin alpha plus sin beta both are equal to this 0. So I will solve to get the value of this cos 2 alpha plus cos 2 beta. इस तरह का इसका फॉर्मूला हमें कैसे मिल सकता है, तो हम करेंगे cos ऑफ अल्फ़ा प्लस cos ऑफ बीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, उनका स्क्वायर भी 0 होगा, उनका डिफरेंस भी 0 होगा. इट विल बी इक्वल टू व्हाट 0. अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा इजीली मिल जाएगा. सो स्क्वेयरिंग इसका स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा फर्स्ट टर्म, इसका स्क्वायर में फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर अल्फ़ा. सो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा. सो हियर दिस इज cos स्क्वायर अल्फ़ा लिख ही लेते हैं. cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0. माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0 प्लस होगा, माइनस से माइनस हो जाएगा. a प्लस b का होल स्क्वायर यूज़ किया है. नाउ cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos ऑफ 2 थीटा. सो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा cos ऑफ 2 अल्फ़ा एंड cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा. cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा cos ऑफ 2 बीटा, cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला. और यहाँ पे प्लस 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, टेकिंग 2 कॉमन cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज़ द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ a प्लस b, यानी a होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0. सो लेट इसके वैल्यू हमें इजीली मिल गई है. cos 2 अल्फ़ा प्लस cos ऑफ 2 बीटा विल बी इक्वल टू माइनस 2 cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा.
taking 2 common, cos A cos B minus sin A sin B is cos of A plus B, so cos of alpha plus beta होगा minus 2 cos of alpha plus beta. See the option minus 2 cos of alpha plus beta. Yes, this is in the second option. And here is question number 48. इस क्वेश्चन में हमें पूछा है a quadratic equation whose roots are cosec square theta and sec square theta can be. ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने का है कि उसके रूट्स कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा हो सकते हैं. सो सी स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 48. तो हमें ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का है हुज रूट्स आर कोसेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा हो सकते हैं, कैन बी पूछा है. सो हियर द रूट्स आर cosec square theta and sec square theta. These are the roots. So these roots are, let this is alpha, this is beta. So sum of the roots हम देखेंगे पहले क्या मिलता है. What is the value of sum of the roots? Alpha plus beta, क्योंकि quadratic equation form होता है by using the sum of the roots and product of the roots. So alpha plus beta हम find out करेंगे. So this is cosec square theta plus sec square theta 1 by sin square theta plus 1 by cos square theta, 1 by cos square theta. So sin square plus cos square 1 by sin square into cos square, 1 by cos square into sin square. So this is again sec square theta into cosec square theta. या फिर हमें इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, this is 1 by what? 1 by sin square theta into cos square theta. ओके, cos square plus sin square 1 होगा, नीचे इनका प्रोडक्ट होगा. इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 sin square theta into cos square theta. So it is 4 by 2 sin theta cos theta. So sin of 2 theta sin square of 2 theta. So sin square of 2 theta sin 2 theta की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1. So sin square 2 theta is also less than or equal to 1. तो इसकी वैल्यू दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बिकॉज 4 अपॉन मैक्सिमम कितना होगा? 1. 4 अपॉन मैक्सिमम साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रूट्स इज मिनिमम वैल्यू कितनी है? 4 है. इट कैन बी 4 एंड ग्रेटर देन 4. सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर हम देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा. तो अभी यही आया था हमारे पास. दिस इज ऑल्सो 1 बाय साइन स्क्वायर इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर ही होगा. सो दिस एंड दिस इज सेम. ओके, इट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा. सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 4. ओके स्टूडेंट्स, सो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से कौन सा हो सकता है कि जिनके रूट्स ये सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा हो? तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें देखने का है कि जिनका सम ऑफ द रूट्स 4 से ज़्यादा हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी 4 से ज़्यादा हो. तो अगर इन ऑप्शंस को मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ये थर्ड ऑप्शन में ही मुझे ये दिखाई दे रहा है. ऑप्शन सी में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0. ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0. इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स अगर मैं देखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज 5 माइनस b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c बाई ए 5 एंड दिस सम ऑफ द रूट्स एंड दिस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज ग्रेटर दैन 4. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है जिनके रूट्स हो कोसेक स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर. सो देयरफॉर दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट to this question number 48. Third option is correct. And here is this question number 49. Again we have to find the value of this expression. See the question, cos square 10 minus cos 10 into cos 50 plus cos square of 50.
तो हमें यहाँ पे कॉस ए कॉस बी दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट की टर्म। डे फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ हो सकता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर यहाँ पे हो तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 10 प्लस दिस 2 cos square of 50 minus this 2 cos of 10 into cos of 50. So 1 by 2 as it is, 2 cos square theta is 1 plus cos of 2 theta, 2 cos square theta is 1 plus cos of 2 theta, 10 का डबल होगा 20। इसी तरह से ये भी होगा 2 cos square theta is 1 plus cos of 2 theta, 1 plus cos of 2 times 50, so this will be equal to 100 minus 2 cos a into cos b, 2 cos a into cos b is cos of a plus b plus cos of a minus b, cos of a plus b कितना होगा 60 प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस से तो उससे फिर से माइनस बनेगा, माइनस cos of a minus b कितना बनेगा 40, 2 cos a into cos b, cos of a plus b plus cos of a minus b, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस से ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके अब देखिए, सो दिस इज़ 1 बाय 2, 1 प्लस 1 2, ये 1 प्लस 1 2 होगा, ये cos 60 भी लिख लेता हूँ मैं, ये देखिए 1 प्लस 1 2 और ये cos 60 माइनस 1 बाई 2। अब रिमेनिंग एंगल्स क्या क्या बचे हैं मेरे पास, cos 20 है प्लस cos ऑफ 100 है और माइनस cos ऑफ 40 है। ओके, सो दिस इज़ 1 बाई 2, दिस इज़ 3 बाई 2 प्लस, अब इस cos 20 को भी मैं लिख लेता हूँ और यूज़ करूँगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या होगा 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 यानी 140 बाई 2 दैट विल बी 70 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। तो यहाँ पे एंगल माइनस आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस होगा, तो यहाँ पे मैं प्लस का माइनस लिख देता हूँ और इनका डिफरेंस है 60 यानी बाई 2 इंटू यानी कितना होगा वो 30 होगा। ओके, नाउ दिस 2 sin 30 is cancel, sin 30 is 1 by 2, 2 will get cancel, so it is 1 by 2 into 3 by 2 प्लस, लेकिन यहाँ पे ये बचा है cos 20 माइनस साइन ऑफ 70। ओके स्टूडेंट, बट cos ऑफ 20 इज साइन ऑफ 70, cos ऑफ 20 इज साइन ऑफ 70, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 20 और 70, cos ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सो दिस प्लस साइन 70 माइनस साइन 70 विल गेट कैंसल, 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 3 बाई 4। तो देखिए 3 बाई 4 इज द आंसर to this question number 49. Yes, this 3 by 4 is in the third option. And this is the last question of this lecture number 5, question number 50. लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 50। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 1, ये इक्वेशन मुझे दिया है, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 5, cos ऑफ 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 5, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है, एंड गिवन इक्वेशन इज दिस। तो देखिए क्या एडजस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे +1 है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे भी 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो एक एडजस्टमेंट करता हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को मैं 1 ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो ये होगा 2 tan स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 2, 1 ऐड कर दिया है दोनों साइड को, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन tan स्क्वायर 5, ये होगा 2 कॉमन लेने के बाद मुझे मिलेगा tan स्क्वायर 5 प्लस 1। ओके, आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 5 इज sec स्क्वायर 5। इसे cos में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो दिस विल बिकम cos स्क्वायर 5, ये cos स्क्वायर 5 इधर होगा, ये cos उधर जाएगा, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, सो cos स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए cos ऑफ 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ, cos स्क्वायर 5, 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा,
2 cos square theta is what 1 plus cos of 2 theta and मुझे वैल्यू चाहिए cos of 2 theta plus sin square of phi. So this is cos of this can be written as 1 minus sin square of phi, yes, equal to 1 plus cos of 2 theta. So this one and this one will get cancelled. So like this I have this cos of 2 theta plus sin square of phi will be equal to, ये पे है 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा है लेफ्ट साइड को. सो cos of 2 theta एक बार चेक कर लेंगे, 2 cos square theta is 1 plus cos of 2 theta 1 minus sin square theta is cos square theta 1 is get cancel. yes, so cos of 2 theta plus sin square phi इसकी वैल्यू 0 है. ऑप्शन चेक कीजिए 0, yes 0 इज इन द सेकेंड ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. तो ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटीज फॉर JEE Mains. सो स्टूडेंट्स प्लीज सी ऑल दीज लेक्चर्स केयरफुली. 15 लेक्चर्स होने वाले हैं, हर लेक्चर में 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए. एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, ऑल दिस क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड फ्रॉम सेंगेज मैथमेटिक्स एंड RT शर्मा का ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, और उससे इक्विवेलेंट जो बुक्स है जिसमें सभी क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस है कि जो क्वेश्चंस हमें JEE एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस का सिलेक्शन इन लेक्चर्स में किया है. तो स्टूडेंट्स प्लीज सी ऑल द लेक्चर्स केयरफुली. सो दिस वाज लेक्चर नंबर 5. वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6. ओके, बाय.